नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल ये ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। वहीं पद्मनाभ स्वामी मंदिर विष्णु भक्तों की महत्वपूर्ण आराधना स्थली है। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और वहां कई लोगों से मंदिर के बारे में उन्होंने जानकारी ली। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि क्योंकि मंदिर परिसर में भ्रमण और दर्शन करने के उपरांत हमने आपको जैसा बताया और हमारे विजुअल्स के माध्यम से आपने देखा, इस मंदिर की गरिमा, देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसको लोग धनवान मंदिर के रूप में समझते हैं, लेकिन यहाँ की जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसकी तुलना इस देश में करना मुश्किल होगा। हमारे साथ यहाँ पे एक लोकल शॉपकीपर हैं और व्यवसाय से ये केबल ऑपरेटर भी हैं। और इन जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूँगा एक बार पूरा ये बैकग्राउंड दिखाएं कि ये इनकी एक पूरी दुकान है, जिसमें खास तौर से आप देख सकते हैं कि भगवान पद्म स्वामी से जुड़ी उनकी मंदिर, भगवान कार्तिक, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री महेश, उनसे संबंधित सामग्री यहाँ मिलती है और ये काफ़ी वर्षों से ये दुकान है। तो हम चाहेंगे अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से वो सीधे अब रुख करें हमारे गेस्ट के पास और अब हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इंग्लिश में प्लीज सर, व्हाट इज योर नेम? My name is Kumar. I am doing this business for last 20 years. We have one other shop also. This name is also Vinayaka Traders. Basically, I am a cable TV operator. My native place is Trivandrum. Okay. Sir, we want to just know how do you compare this temple as compared to the other temples of this country? What a special thing you see the worshippers who come all over the India, even from the international level also, other countries people come. What special things you know about this temple? Sir, Padmanabha Swami, you know Padmanabha Swami temple is one of the richest temple now. His temple is very ideological and very historical temple. A lot of pujas here. Every day morning 3:30 open the temple. After every half an hour, every 1 hour, different type of pujas. The local people come to visit the same time. 5 o'clock one Srivali is here. The Bhavan went out the temple and round the Srivali. At the meantime, the Beli is also here. The other pujaris are in front of the god. They are giving the Bhudaganas some food for every early morning. So the same puja continued every 1 hour. Abhisheka time the local peoples are not allowed. Only the prince is allowed. Prince and is allowed. Sir, as a journalist, we heard when in 2011 this temple was given to the court, I think in jurisdiction, and then there was a committee now which has been who are looking after everything. So from last 12 years you are over here. Do you find any difference when it was under the control of the trustee? Now it is under control of the judiciary. So the temple is in the meantime. The temple is under the control of king. He is one of the panelists. The family is controlling the temple. Okay. The government is also controlling. There is controlling only the outside. Okay. The temple's property is controlling under the control of the kingdom. Okay, the Travancore kingdom. This is controlling only the outside. Okay. The temple's property is controlling under the control of the kingdom. Okay, the Travancore kingdom. Okay. They are the main part of the temple. And sir, as you see, because the worshippers who come over here, they buy the religious things from your place, the photographs and the other things which you have in your shop. How do you feel the temple as the worshippers, the temples in North India and in South India? Do you find any difference over here? In now only 2 or 4 years, a lot of tourists comes in Trivandrum. They are visiting for the temple. They think the treasury is in outside, but treasury is not in outside. Treasury is under. They are come and told where is the treasure? Where is the treasure? The treasury is under the control of judiciary. Okay.
A lot of people come and visit. They are very much interested to go to the temple. They are coming in my shop and purchase for the Bhagwan's idol. So totally the temple is So जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता सकें कि जो लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं वो भगवान के दर्शन के अलावा यहाँ पे खजाने और जो धनवान भगवान के बारे में भी जानने की उत्सुकता उनको रहती, जैसा कि हमारे साथ हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट ने बताया. Sir, so as it has been claimed not by any verified person, but it has been said that the treasure which is inside the temple, it is countless. Do you also think because only one treasure is one underground is not opened. This is under a lot of treasure inside, but the judiciary not allowed to open this. There's some technical problems, I think. Sir, one last question. On 22nd of January, there has been going to be the Pran Pratishtha of the Ayodhya Ram Temple, the awaited Ram Temple, which was being said by many other political opposition parties that it will never become. It is just an agenda for the Bharatiya Janata Party. Now it is going to be built up in such a great. Already it is being built up, but the Pran Pratishtha going to be held. What do you think and what do you want to say about this temple, Ayodhya Temple? Ayodhya temple is one of the biggest temples. A lot of Keralians are visiting their temple. I don't know for the details of the temple. I am not going to the temple, but the lot of people tell this temple is a very big temple. Lot of visitors coming in the temple. The Modiji is helping for the temple. The government is also helping for the temple. So I don't know for other. तो जैसा थैंक यू सर फॉर टॉकिंग टू अस. और जैसा आप समझ सकते हैं इन्होंने बताया, क्योंकि ये खुद विश्व के सबसे धनवान मंदिर में के पास ये रहते हैं और ये 12 वर्षों से यहाँ पे हैं, लेकिन इनके मन में भी उत्सुकता है और ये भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की विशालता और उसकी भव्यता से काफ़ी प्रभावित हैं और इनकी भी शुभकामनाएं हैं कि वो मंदिर बहुत भव्य रहेगा. हालांकि पद्मासन स्वामी मंदिर जिसको हम कहते हैं, भगवान विष्णु जी का ये मंदिर है. भगवान राम भी उन्हीं के ही कहीं ना कहीं अवतार हैं, तो एक ही हैं भगवान और पूरे देश में भी हैं. लेकिन आस्था और धर्म के प्रति जो इस देश में जो एकाग्रता हो रही है, मैं कहना चाहूँगा कि फिर वो चाहे अयोध्या हो या केरला में स्थित त्रिवेंद्रम में स्थित ये मंदिर है, लोगों की आस्था कहीं ना कहीं धर्म की तरफ जाती जा रही है. तो आप देख सकते हैं, हालांकि इस मंदिर में कोर्ट के आदेशों के बाद से यहाँ पे कमेटी है जो कमेटी तय करती है कि यहाँ से कौन अधिकृत होगा वर्जन देने के लिए. साधना टीवी ने यहाँ के मुख्य पुजारी समेत तमाम ट्रस्टी के लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि अगर वो एक वर्जन दे सके, लेकिन उसमें एक समय लगेगा. लेकिन जैसे कि हमने आपसे वायदा किया था अपने दर्शकों से कि हम आपको बाकायदा बताएंगे इस पूरे मंदिर के बारे में, वो हम आपको पूरे अपने वीडियोस के माध्यम से बताएंगे. और मैं बता सकता हूँ कि इस देश का सबसे पुराना मंदिर आज हमने आपको दिखाया. आज भी हमारे उत्तर भारत के कई दर्शकों को ये पता नहीं है कि 5000 वर्ष पुराने इस मंदिर में, ये इस देश का सबसे ज़्यादा धनवान मंदिर, हम ये आपसे कहेंगे ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बार दर्शन करने ज़रूर आएँ. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस देश, सिर्फ देश के नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय सभी तमाम लोग यहाँ पे आते हैं. लेकिन इस मंदिर की भी एक विशेषता है, यहाँ पे दर्शन सिर्फ हिंदू कर सकता है. जी हाँ, ये इस मंदिर की सबसे बड़ी यहाँ की शर्त है कि जो यहाँ व्यक्ति आएगा वो हिंदू होना चाहिए. तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप सब लोगों को इस पद्मासन स्वामी मंदिर से आप सबका स्वागत करता हूं और ख़ास तौर से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि हमें ये सौभाग्य मिला. साधना के सभी दर्शकों से मेरी अपील है, कृपया अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बीच से भी एक समय ज़रूर निकालें इस मंदिर में आने का, क्योंकि ये सौभाग्य होगा अगर आप इस मंदिर में आते हैं सपरिवार. ये अपने आप में एक सौभाग्य की बात है. अपनी पूरी टीम के साथ मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी. और वहीं अयोध्या में श्री राम के दर्शन पूजन के इच्छुक श्रद्धालुओं को अहमदाबाद अयोध्या के बीच सीधी हवाई सेवा का विकल्प प्रदान किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में अहमदाबाद अयोध्या के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई है. वहीं अयोध्या अहमदाबाद के बीच नई हवाई सेवा शुरू होने पर खुशी जाहिर करते हुए सीएम योगी ने कहा है कि इस उड़ान सेवा से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हवाई सेवा द्वारा सीधे अहमदाबाद से जुड़ गई है. अयोध्या अहमदाबाद के बीच में वायु सेवा प्रारंभ होने
के अवसर पर आज के इस समारोह में वर्चुअली जुड़े हुए केंद्रीय नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अयोध्या के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, माननीय सांसद अहमदाबाद प्रोफेसर क्रीट प्रेमजी भाई सोलंकी जी, स्पेशल डायरेक्टर इंडिगो श्री आर.के. सिंह जी, नागर विमानन मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री डी.एस. मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए अयोध्या और अहमदाबाद से जुड़े हुए सभी इंडिगो और एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारीगण और बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या प्रदान किया है। 30 दिसंबर को इस चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या दिल्ली के बीच में वायु सेवा प्रारंभ हुई और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। यह उन अनंत संभावनाओं को जो 2014 के बाद देश के अंदर हम सबको देखने को मिला है, उन सबको आज हमें इन सेवाओं के माध्यम से देखने को भी मिल रहा है। मुझे देख करके प्रसन्नता है कि इंडिगो एयरलाइंस तेजी के साथ न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर अपनी वायु सेवा का विस्तार करने में सफल हुई है और उत्तर प्रदेश के 8 नगरों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और आगरा, बरेली तथा अयोध्या में आज इंडिगो अपनी हवाई यात्राएं सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। मेरे सामने जो मुझे अवगत कराया गया कि 2009 में प्रारंभ हुई लखनऊ एयरपोर्ट से जो पहली उड़ान थी, आज वह 13 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थल के लिए और 84 उड़ानें इनके माध्यम से प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा अकेले यहां से उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे ही वाराणसी में 2014 से 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 34 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो के द्वारा उपलब्ध है। गोरखपुर एयरपोर्ट से 2018 से प्रारंभ हुई वर्तमान में 4 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रयागराज से 2018 में प्रारंभ हुई 10 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्यों स्थलों के लिए 11 उड़ानें प्रतिदिन उपलब्ध हैं। आगरा में 6 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 6 उड़ानें प्रतिदिन, कानपुर में 3 कनेक्टेड राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों के लिए 3 उड़ानें प्रतिदिन। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। बेस्ट चैनल है श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उनकी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और भारत सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के कई शहरों का अच्छा प्रदर्शन रहा। 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में नोएडा और गाजियाबाद का नाम है। 1 लाख की आबादी के पैमाने पर नोएडा सबसे साफ सुथरा शहर है, जबकि गाजियाबाद नगर निगम को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं यूपी के 2 शहरों को पहली बार स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला है और राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले 13 शहरों में यूपी के 2 शहर हैं। 3 अन्य शहरों को पहली बार क्षेत्रीय पुरस्कार मिला है। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा को राज्य पुरस्कार मिला और फिरोजाबाद, लखनऊ, कानपुर को राज्य पुरस्कार मिला। झांसी, गोरखपुर और वाराणसी को राज्य पुरस्कार मिला। वहीं यूपी ने कचरा मुक्त शहर GFC में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ऐसे शहरों में पिछले 2 वर्षों में 13 गुना की वृद्धि हुई है और यूपी ने ODF बनाने में बड़ी सफलता भी हासिल की है। साथ ही नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुरस्कार लेने के बाद यूपी के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कहा कि यूपी ने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि ये पहली बार है कि प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और कांग्रेस द्वारा राम मंदिर के निमंत्रण को खारिज करने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को उस समय स्वराष्ट्र के प्रमुख को लिखा था कि इस कठिन समय में इस समारोह के लिए दिल्ली से मेरा आना संभव नहीं है। कांग्रेस अपनी पुरानी परंपरा निभा रही है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के पीछे उन्मत्त चिरविघ्न संतोषी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करके कैसे संतोष प्राप्त किया जा सकता है, उस प्रवृत्ति की परिचायक कांग्रेस पार्टी के साथ पता नहीं कौन सी समस्या है कि भारत का इतिहास जब जब करवट ले रहा होता है तब तब वो उस अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिष्कार करते हैं। अभी हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की, नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भाई, नई संसद भवन 150 वर्षों तक चलेगी, इसका भारतीय जनता पार्टी अथवा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तो कोई मतलब नहीं है। उस ऐतिहासिक अवसर का बहिष्कार किया, जबकि उल्लेखनीय यह है कि अंग्रेजों के जमाने की संसद का बहिष्कार नहीं हुआ था वायसराय के टाइम में। GST लागू हुआ, भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्ट्राध्यक्ष और वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए। क्योंकि मैं पुनः विनम्रता से कह दूं कि नॉन अलाइन समिट भी हुआ था, पर नॉन अलाइन समिट उस समय वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था, एंड G20 इज कंसीडर्ड एज द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे, भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया, जबकि वो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक हैं, परंतु ये एक संयोग की बात थी। देखिए, एक अनुसूचित जाति से थे, एक अनुसूचित जनजाति से थी, इसके बावजूद आपने बहिष्कार किया। और अभिभाषण का बहिष्कार करके आपको मिलना क्या था, यह भी बहुत स्पष्ट था। याद करिए, कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया, और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। जब मई 1998 में पोखरण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में,
कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद भी नकारात्मक प्रकार की प्रक्रियाएं, जबकि भारत ने पहली बार ये कहा था कि वी हैव डिक्लेयर्ड नाउ वी हैव बिकम द न्यूक्लियर स्टेट। कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन था, परंतु उसके भी ये विरोध में खड़े हो गए। और तो और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, यदि आजादी 800 साल की गुलामी के बाद हमें मिली थी 1947 में, यद्यपि कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी, हम कहते हैं 800 साल की गुलामी, तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वह स्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके के लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ था। और उस अवसर पर यहां एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप है। मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए कोट करना चाहता हूं कि जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इनवाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और अब खबर बरेली से, जहां विकास भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। मित्रों, आज मैंने शाहजहांपुर और बरेली इन दोनों जनपदों का भ्रमण करने का मुझे अवसर मिला। खास तौर पर बरेली में यहां से जुड़े हुए हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का एक अवसर मिला। बरेली की वर्षों से लंबित श्रीनाथ कॉरिडोर परियोजनाओं का अवलोकन करने और उनमें से कुछ परियोजनाओं को स्वीकृत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। अभी हम लोगों ने इस पूरी कमिश्नरी के समीक्षा के माध्यम से चल रही विकास की परियोजनाओं और जो प्रस्तावित योजनाएं हैं उन पर भी विस्तार से माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इस पूरी कमिश्नरी में क्या कुछ चल रहा है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से चर्चा की है। खासतौर पर इस कमिश्नरी में 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, बरेली और शाहजहांपुर, सेफ सिटी के रूप में इन्हें डेवलप करना। इसके अलावा नगर पालिका परिषद भी हैं, इसमें बदायूं भी है, पीलीभीत भी है। इन्हें सेफ सिटी के रूप में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ये केवल सरकार की योजना नहीं बल्कि आम जन की भागीदारी भी इसके साथ हो सके। सेफ सिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में जोड़ रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से हम शहर की सुरक्षा, शहर की ट्रैफिक की व्यवस्था और सिटी की स्वच्छता को ध्यान में रख करके इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने की एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य कर रहे हैं और बहुत शीघ्र इसका एक स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा।
माननीय जनप्रतिनिधियों ने विकास की बहुत सारी योजनाओं के बारे में अपने सुझाव भी दिए और अपने प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। इनमें से बहुत सारे प्रस्ताव शासन ने पहले ही स्वीकृत किए हैं, बहुत सारे सरकार के संज्ञान में हैं, उन पर सरकार के स्तर पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारे चारों जनपद बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत यहाँ की उन अनंत संभावनाओं को न केवल यहाँ की खुशहाली के लिए बल्कि प्रदेश की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ाने में माननीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होंगे। और इसी दृष्टि से आज यहाँ का मैंने निरीक्षण भी किया है। जनसभा में उन योजनाओं का, कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और कुछ अभी परियोजनाओं का हम अभी अवलोकन करने भी निकल रहे हैं। मैंने कहा आपको इसके बारे में अवगत करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।